Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. I am Dr. Ammar Ahmed, serving as Marketing Director at Pride. I am truly delighted to have you all join us today for this special session organized by Pride, the Pakistan Research Institute of Dental Education. At Pride, we are dedicated to promoting awareness, education, and research through impactful webinars, campaigns, and community engagement. Our aim is to foster learning, innovation, and evidence based practices among professionals and the general public alike. Today's session holds a special place in our hearts. It's our Mother's Day special webinar titled Smile Through the Changes Oral Health During Pregnancy and Puberty. As we celebrate the strength and grace of mothers, it's equally important to address how women's oral health evolves during different life stages, especially pregnancy and puberty. This section is designed to empower mothers, expectant parents, and healthcare professionals with vital knowledge to better understand and manage these changes. We are honored to have with us a panel of distinguished speakers from the Pride team, each bringing valuable insights to today's important discussion. So, without further delay, let's welcome Dr. Ghazala Naveed. Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Ghazala Naveed. I'm the Managing Director at Pride, and today we have come together on this auspicious day to discuss and educate on a very important topic, that is, smile through the changes, oral health during pregnancy and puberty. So basically what happens is during pregnancy and puberty, females go through a lot of changes. Some of them are related to oral health, and I've received a few questions regarding these topics, which I'll be answering. So, moving on to our first question, that what are the most common oral health myths during pregnancy or puberty? So, basically, myths वो चीजें होती है which are not factual, which are not based on facts. ठीक है? So, इसमें सबसे पहले myth जो है हमारे पास in dentistry, that is कि most of the females, pregnant females which come to our clinic, वो inform नहीं करती to their dentist that they are pregnant. They try to hide their pregnancy just because they think that it is not related to their procedure या dental checkup से वो related नहीं है. But इसको मैं इसलिए गलत कहूंगी क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स या मेडिकेशन, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इस इंफॉर्मेशन पे कि इफ यू आर प्रेग्नेंट और नॉट. बहुत सी मेडिकेशन है जो हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, बहुत से प्रोसीजर्स है जो हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं. तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डेंटिस्ट या आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इससे रिलेटेड जरूर इन्फॉर्म करें. नेक्स्ट हमारे पास मिथ आती है कि प्रेगनेंसी आपकी ओरल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, विच इज रॉन्ग. बिकॉज प्रेगनेंसी में आपके बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं. आपके प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में सोजिश हो सकती है, उनमें से खून आ सकता है, आपकी प्लाक बनना ज्यादा शुरू हो सकती है, आपकी कैविटीज बन सकती है, आपको ड्राई माउथ हो सकता है. ये सब कुछ आपकी प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड है और प्यूबर्टी से ही रिलेटेड है. सो दिस इज अ मिथ कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं. इसके बाद हमारे पास आता है कि जो ओरल हेल्थ है वो आपकी बेबी को इम्पैक्ट नहीं करती या उसका कोई रिलेशन नहीं होता आपके डेवलपिंग फीटस से. तो बेसिकली दिस इज अ प्रूवन फैक्चुअल विद प्रॉपर, इसकी हमारे पास स्टडीज जो है वो हो चुकी हुई है, कंडक्ट हो चुकी हुई है कि जो आपका बेबी का वेट है, बेबीज कैन बी अंडर वेट इफ द मदर इज सफरिंग फ्रॉम जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस. मतलब ये कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल के मसूड़ों से खून आ रहा है या उसको पेरियोडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस का इशू है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो आपके बच्चे की, होने वाले बच्चे की सेहत पे असरअंदाज होता है. ऐसे बच्चे अंडरवेट हो सकते हैं या प्री मेच्योर डिलीवर हो सकते हैं. ठीक है? इसलिए प्रेगनेंसी में अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रखना और इसको बेहतर तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है. इसके बाद हमारे पास आता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को डेंटल चेकअप्स या डेंटल प्रोसीजर्स नहीं करवाने चाहिए.
ठीक है, आई डू नॉट एग्री विद दिस, दिस इज रॉन्ग। आपको चाहिए कि आप रेगुलर डेंटल चेकअप्स करवाएं, अपनी डेंटल हेल्थ को मॉनिटर करवाएं। और उसकी वजह मैं अभी आपको एक एक वजह तो बता चुकी हूँ, दूसरी ये कि फीमेल के अपने लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है, ना सिर्फ उसके बच्चे के लिए, उसकी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि बहुत सी कंडीशंस, ओरल हेल्थ कंडीशंस आफ्टर प्रेगनेंसी ठीक हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं जो कि आपकी एक क्रोनिक डिजीज की तरफ चली जाती है, तो इनकी मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत जरूरी होती है। फिर एक मिथ लोगों में या पेशेंट में ये भी बहुत ज्यादा है कि प्रेगनेंसी में आपके दांतों से कैल्शियम निकलता है और दांत कमजोर हो जाते हैं। देखिए, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी पूरी बॉडी में ही कैल्शियम एक्स्ट्रा चाहिए होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि एक बेबी का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, बोनी स्ट्रक्चर बन रहा होता है, तो उसमें हम वैसे ही कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह सब चीजें ऐड करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं देन नॉर्मल, जो कि हमें चाहिए होती है टू केटर द ओवरऑल बोन लॉस जो, या कैल्शियम लॉस जो आपकी बोन से हो रहा होता है उसको, ठीक है। तो इट इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द टीथ बट टू द ओवरऑल आपकी हेल्थ के साथ रिलेटेड। फिर आता है कि डेंटल एक्सरेज आर अनसेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड आई डू नॉट एग्री विद दिस। और मेरे साथ बहुत से ऐसे डेंटल प्रोफेशनल्स, एंड नाउ इट्स लाइक यूनिवर्सली नोन फैक्ट कि डेंटल एक्स आपकी बेबी के लिए या आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल नहीं है, बट स्टिल यू शुड हैव यू शुड टेक प्रिकॉशंस, ठीक है, और ट्राई करें, अवॉइड करें, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है कि आप बोलें कि इसकी वजह से कोई खुदा ना खास्ता कोई ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और मिथ है कि मॉर्निंग सिकनेस जो है वो आपके दांतों का उससे कोई रिलेशन नहीं है या वो दांतों का अफेक्ट नहीं करती, वो बिल्कुल अफेक्ट करती है। मॉर्निंग सिकनेस में बेसिकली आपको वॉमिटिंग से यूजली हो रही होती है, या एसिड जो स्टमक एसिड्स है वो उनका रिफ्लेक्स हो रहा होता है। तो बेसिकली एसिड्स आपके दांतों में से मिनरल्स को निकालते हैं, उनको पोरस कर देते हैं, उनको वीकन करते हैं। सो डेफिनेटली इसका रिलेशन है विद योर मॉर्निंग सिकनेस, और इसको मैनेज करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सिंपल पानी की कुली करें, थोड़े टाइम बाद ब्रशिंग अवॉइड करें, फौरन से ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप किसी माउथ वॉश और पानी से कुली कर सकते हैं 1 मिनट तक मुंह में स्विश अराउंड करने के बाद, विच विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि देयर इज एन आइडिया गोइंग ऑन दैट ओरल हेल्थ इश्यूज आर इनएविटेबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी, कि आप कुछ भी कर लो, आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी ओरल हेल्थ इश्यूज होंगे ही। दिस इज द क्वेश्चन, एंड सॉरी, आई डू नॉट एग्री विद दिस, ठीक है, बिकॉज अगर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर अपने डेंटल चेकअप्स करवा रहे हैं, अपने हार्मोनल चेकअप्स करवा रहे हैं, तो ये सब कुछ प्रिवेंट किया जा सकता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको होगा, लाइक सम पीपल से कि जेनेटिक्स हैं तो अब ये हैं ही, होंगे ही हमें, लेकिन नहीं, आप बहुत से सिम्टम्स हैं जिनको आप बिफोर डेवलपिंग देम इनटू अ डिजीज आप उनको एट टाइम स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली आपको प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, जिसमें से रेगुलर डेंटल चेकअप्स नंबर 1 पे आता है। ओरल हाइजीन आपकी अच्छी मेंटेन होनी चाहिए, आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक का पता होना चाहिए, आप फ्लॉस प्रॉपरली करें, आपकी डाइट जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, हेल्दी भी हो, और इट्स लाइक ये नहीं कि आप कॉन्टिन्यूसली स्नैक कर रहे हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूसली स्नैक कर रहे हैं तो वो भी आपके ओरल हेल्थ को खराब करती है, ठीक है। आपको मॉर्निंग सिकनेस जैसे मैंने बताया, उसको मैनेजमेंट के उसके प्रॉपर वेज होते हैं, आप वो करें, ठीक है। या तो आप सॉल्ट वाटर के कुल्ली कर सकते हैं, या आप माउथ वॉश की कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू समथिंग दैट वुड न्यूट्रलाइज द एसिड्स जो कि आपके दांतों पे बार बार लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि हाउ कैन आई एजुकेट माई सेल्फ अबाउट ओरल हेल्थ ड्यूरिंग हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, यानी आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए इससे रिलेटेड तो आप अपने आप को एजुकेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, कुछ एजुकेशन आप अपने आप को एजुकेट करने के लिए कुछ तरीके तो आपके पास एट ऑल टाइम्स अवेलेबल है, आपके मोबाइल लैपटॉप्स, आप ऑनलाइन बहुत से अच्छे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि माउथ हेल्दी वेबसाइट है, क्लीवलैंड क्लिनिक वेबसाइट है,
एडीए के डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिधर से आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं डिफरेंट सिम्टम्स को। इसके अलावा आप अपने किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, इससे रिलेटेड किसी डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं। अपने कंसर्न्स आप जाहिर करेंगे ही तो आपको इससे रिलेटेड एजुकेशन मिलेगी और आपको एजुकेट किया जाएगा। अगर आप खुद ही फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, आप खुद ही इनिशियल स्टेप नहीं लेंगे, तो आप तक एजुकेशन लेके आना या आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वो चीज सिखाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सो कीप योर सेल्फ अवेयर। और इन चीजों से रिलेटेड आप जरूर चेक करें ड्यूरिंग योर प्यूबर्टी, योर ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज। ये 4 स्टेजेस हैं इन लाइफ जो कि एक फीमेल को जरूर अपने आप को एजुकेट करना चाहिए ऑन दीज 4 फेजेस ऑफ हर लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर लर्निंग अबाउट ओरल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्यूबर्टी। देन अगेन फिर वही मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन एडीए वेबसाइट आ जाती है। आप वहां से बहुत से क्वेश्चंस, एफएक्यू क्वेश्चन का उनका या वीडियोस उनकी होती है बहुत सी जो कि आप देख सकते हैं। देन अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है जो कि आपको एडोलेसेंस के दौरान और ड्यूरिंग योर प्यूबर्टी ये बहुत सी चीजें आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ जर्नल्स हैं जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और मेडिसिना जर्नल्स, ये आप चेक कर सकते हैं। और ऑनलाइन रिसोर्सेज में जो 2 सबसे बेस्ट समझे जाते हैं वेब एमडी है और क्लीवलैंड क्लिनिक। ठीक है, ये वाली जगह है जिधर से आप आराम से अपने सोर्सेज कंफर्म भी कर सकते हैं, फैक्ट चेक भी कर सकते हैं बहुत से मिथ्स को। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन स्ट्रेस इम्पैक्ट ओरल हेल्थ ड्यूरिंग हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। अच्छा, स्ट्रेस का हार्मोनल फ्लक्चुएशन से क्या ताल्लुक है और ये किस तरह से ओरल हेल्थ को चेंज करता है या उसको किस तरह से अफेक्ट करता है। तो बेसिकली स्ट्रेस में भी आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है जिसके अपने कुछ इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो बेसिकली करते हैं, इससे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि फाइट और फ्लाइट सिस्टम वाला हार्मोन सबसे पहले आता है। आइदर फाइट और फ्लाइट, आपकी बॉडी में से ब्लड चेंजेस आते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, आपका ड्राई माउथ हो जाता है। ठीक है, आपके बॉडी में एक्सेस फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। आपकी ओरल हेल्थ देखें, अगर आपके ड्राई माउथ है या आपकी ओरल हेल्थ इसकी स्ट्रेस की वजह से, आपने देखा होगा जो लोग अंडर स्ट्रेस रहते हैं उनके बहुत से इन्फ्लेम्ड जिंजिवाइटिस रहते हैं, इन्फ्लेम्ड या सूजे हुए उनके मसूड़े रहते हैं। वजह यह है कि स्ट्रेस में आपकी इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी तो इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू योर ओरल हेल्थ। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट नाइट तक जाग रहे हैं आपके सलाइवा का फ्लो चेंज हो जाता है। ठीक है, और स्ट्रेस की वजह से आपकी न्यूट्रिशन पे भी इफेक्ट आता है, आप प्रॉपर आपकी डाइट नहीं रहती। इसके अलावा इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स करिए बहुत सी। ठीक है, जिसमें योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज वगैरह के लिए आप कोशिश करें कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें या वॉक वगैरह करें। आप सपोर्ट जरूर लें कि इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग डू डिस्कस इट विद समवन, ताकि आप को थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो। ठीक है, और सेल्फ केयर, लाइक यू हैव टू लव योर सेल्फ टू लव अदर्स। ठीक है, ये सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई ख्याल नहीं रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरल हेल्थ टिप्स फॉर प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलेसेंट्स। अच्छा, देखिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि नंबर 1, रेगुलर डेंटल चेकअप्स। नो मैटर व्हाट यू हैव टू गेट रेगुलर डेंटल चेकअप्स। ठीक है, एवरी 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स जरूर करें। ठीक है, आपकी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। मैं बहुत लोगों को कहती हूँ कि इफ यू डू नॉट नो हाउ टू ब्रश प्रॉपरली तो आप इलेक्ट्रिक ब्रशेस का इस्तेमाल करें। फ्लॉसिंग नहीं आती, वाटर फ्लॉस यूज कर लें। ठीक है, वाटर पिक भी जिसे कहते हैं। इन्वेस्ट इन दैट, इन्वेस्ट इन योर ओरल हेल्थ, क्योंकि ये आपकी लॉन्ग लाइफ चलनी है। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस की मैनेजमेंट मैंने आपको बताई है। देन हेल्दी डाइट, वेजिटेबल्स वगैरह जरूर होनी चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। आप कॉन्टिन्यूसली स्नैकिंग नहीं करें, कीप देम फार अपार्ट, कि आप
गैप दें, ठीक है, अपने खाने के बाद और उसमें, या उसके बाद यूजली हम कहते हैं पेशेंट्स को आप कुली कर लें। और फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स अगर आपके डेंटिस्ट आपको रेकमेंड करते हैं तो आप करवाइए, ठीक है। अपने डेंटिस्ट को काइंडली जरूर इन्फॉर्म करें दैट यू आर प्रेग्नेंट, डू नॉट हाइड दिस फैक्ट, जैसे बहुत सी फीमेल्स करती हैं जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है ये रिलेटेड नहीं है। प्लीज डू नॉट डू दैट। एडोलेसेंट्स को मैं ये टिप्स दूंगी कि वही कि रेगुलर डेंटल चेकअप्स, गुड ओरल हाइजीन हैबिट्स, जिसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक ब्रशेस और वाटर फ्लॉस यूज करें, कि अगर वो नॉर्मली वो टेक्निक्स नहीं जानते, बेस्ट तो यह है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं एंड आस्क देम टू शो यू प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक एंड फ्लॉसिंग टेक्निक, ठीक है। इसके अलावा आप शुगरी ड्रिंक्स वगैरह चीजें अवॉइड करें, और रात को सोते हुए प्रोटेक्टिव गियर्स जरूर पहने, जैसे कि माउथ गार्ड्स वगैरह है, ठीक है। बहुत से लोग माउथ ब्रीदर्स होते हैं, कुछ ब्रॉक्सिज्म यानी कि टीथ ग्राइंड करते हैं, ये चीजें जरूर होनी चाहिए, ठीक है। दिस हैपेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी या एडोलेसेंस, ठीक है, बहुत से बच्चे करते हैं, तो कीप एन आई ऑन देयर हैबिट्स, ताकि आपको पता चले कि किस टाइम पे कब आपने इंटरसेप्ट करना है और इसको करेक्ट करना है, ठीक है। So these are few questions that I've answered. इसके बाद I would like Dr. Saman to answer a few more questions from you guys. Dr. Saman, Dr. Saman. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much, Dr. Ghazala, for the lovely insight. We are truly grateful. Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone joining us today. I'm Dr. Saman Sultan, Assistant Director at Bright Research Institute of Dental Education. It is truly an honor to speak in this special Mother's Day webinar, which is also a heartfelt tribute to the strength, love, and endless sacrifice of mothers everywhere. The topic of webinar is Smile Through the Changes, Oral Health During Pregnancy and Puberty. Uh, I have received a few questions from dear audience related to oral health changes during puberty that I'll be discussing today. So let's get started. The first question is, how do hormonal changes during puberty affect oral health? हमारे पास जो puberty है, it is a time जब हमारे different hormones, but especially estrogen, testosterone and progesterone, वो हमारी body में अप एंड डाउन रेगुलेट हो रही होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे ऑर्गन एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स में डिफरेंट चेंजेस जो है वो विजिबल होते हैं, बल्कि हमारी ओरल हेल्थ, ओरल कैविटी भी मुतासर हो रही होती है। हमारे मसूड़े और हमारे दांत अफेक्ट हो रहे होते हैं। कैसे कि हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सूजन, फिश एंड ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा एविडेंट होती है। और सिमिलरली हमारे दांतों में ये टेंडेंसी बढ़ जाती है कि जो प्लाक होता है वो मिनरलाइज होके, कैल्सिफाई होके कैलकुलस बन जाता है। कैलकुलस बेसिकली वो चीज होती है जो पत्थर की तरह थिक सा गंज जो होता है दांतों के आसपास, स्पेशली नीचे वाली दांतों के अंदर वाली साइड जिस पे जबान लग रही होती है हमारी, उसके ऊपर पत्थर की तरह सख्त किस्म का गंज जम जाता है, जिसके लिए हमें अक्सर आपने सुना भी होगा स्केलिंग की जाती है, ठीक है, दांतों को साफ करने के लिए, मुंह की सफाई के लिए। तो ये कुछ एविडेंट चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के टाइम हमारी ओरल हेल्थ में विजिबल होते हैं। इनिशियली पहले थोड़ा थोड़ा प्लाक होता है दांतों पे, लेकिन अगर आपकी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड है, और कुछ फैमिलीज में, कुछ लोगों में टेंडेंसी भी होती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है कि उनके अंदर ओरल हेल्थ चेंजेस ज्यादा एविडेंट होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी, और स्पेशली जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा होता है तो उसमें जो ये चेंजेस होते हैं ये बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं। So these are the few of the hormonal changes that affect our oral health during puberty. Next question is, what are the signs and symptoms of puberty gingivitis? जिंजिवाइटिस वैसे भी हो सकता है, ठीक है, आपकी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड है, या आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, या आपका बाकी कोई ऑर्गन सिस्टम जो है वो इफेक्ट हुआ है, तो आपके मुंह के अंदर भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्यूबर्टी होती है, जो हमारे पास एडोलेसेंस का टाइम होता है, उस टाइम पर हमारे मुंह में ज्यादा चेंजेस जो है वो विजिबल होते हैं। क्लियरली साइंस एंड सिम्टम्स आर देयर, जिनको हम प्यूबर्टी जिंजिवाइटिस कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। इसके कॉमन साइंस हमारे पास कौन कौन से हैं? रेड सोलन गम्स, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उन डेज में, और वैसे भी ओवरऑल ओवरऑल इस एज में
मेनली 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज में कंप्लेन करती हैं कि उनके मसूड़ों से खून आता है या उनके मसूड़े हर वक्त सूजे हुए रहते हैं और स्लाइट डिस्कम्फर्ट उनको होती ही रहती है मुंह में। इसके अलावा ब्लीडिंग वाइल ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। अब तो हमारे सोसाइटी में काफी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है, जो कि ऑल्दो वी आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द ओरल हेल्थ एंड ओरल हाइजीन, बट स्टिल पीपल आर अवेयर ऑफ द वर्ड फ्लॉसिंग एंड हाउ टू यूज अ फ्लॉस। तो ऐसे में जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। ऑल्सो हमें अभी तक ये आइडिया भी नहीं हुआ कि हमें सॉफ्ट हेडेड ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज करना चाहिए, और ब्रश भी कैसे करते हैं, बिकॉज जब हम बहुत ज्यादा जोर से ब्रश कर रहे होते हैं, हम हार्ड ब्रश यूज करते हैं, तो इट एडवर्सली अफेक्ट्स आवर गम्स और हमारे दांत को भी, इनेमल को भी। जो दांत की बाहर की सरफेस है, इनेमल है, जब उसको बहुत हार्शली ब्रश करते हैं, विगरसली करते हैं, तो हमारे मसूड़े और दांत दोनों खराब होते हैं, which is an added thing to puberty gingivitis. Then there is tenderness and mild discomfort. You must have heard, young girls अक्सर कंप्लेन करती हैं कि हमारे मुंह में दर्द हो रहा है, हमारे मसूड़ों में दर्द है, और इट्स अ रिलेटिव लाइक टर्म। कभी कहाँ किस तरफ, कभी ऊपर के मसूड़े, कभी नीचे, कभी अंदर की तरफ। एंड देर इज नो फिजिकल लाइक और क्लिनिकल हम कह सकते हैं कि हमारे पास साइन ऑफ अल्सरेशन या कुछ चीज नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दी लाइक आई सेड अर्लियर हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्लीडिंग जो है वो प्रोफ्यूजली हो रही होती है, सॉरी, ब्लड फ्लो प्रोफ्यूजली हो रहा होता है हमारे गम्स के लिए की तरफ। तो इट शोज red and swollen gums which bleeds on and off with a slight, आप थोड़ी सी भी itching irritation करते हैं तो वो bleed करता है, और that adds to discomfort in the gums. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जाहिर है, जब आपके दांत में, इसके साथ साथ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे दांत में ना पत्थर की तरह गंज जमा है। और अगर आप अपने डेंटिस्ट को शो करते हैं जब ये सारे सिम्टम्स हैं, वो आपको स्केलिंग एडवाइस करे और अब आपकी स्केलिंग हो जाए, तो आप कहते हो कि हमारे दांत, तो हमारे दांत किसी ने काट लिया। दिस इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी, अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं हमारे दांत तोड़ दिए। दैट इज नॉट दांत, बेसिकली ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से या माउथ में ओरल चेंजेस की वजह से आपके दांतों के पास जो पत्थर की तरह थिक सा कैलकुलस डिपॉजिट हुआ होता है, बेसिकली वो जब तोड़ा जाता है तो आपको मसूड़े जो कि रिसीड कर जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं, आपकी पूरी दांत को सरफेस को कवर नहीं कर रहे होते, आपको दांत में गैप महसूस होता है जैसे दांत का ही कोई टुकड़ा जो है वो अपने स्केलिंग करते हुए निकाल लिया है। अब ये सब सारे चेंजेस मुंह में हो रहे होते हैं, ब्लीडिंग भी है, कैलकुलस भी है, मसूड़े सूजे हुए भी हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, सिम्टम है बैड ब्रेथ का। पेशेंट कहता है, पेशेंट कम्स, द यंग गर्ल्स यूजुअली कम विद द प्रॉब्लम कि हमें मुंह से गंदी स्मेल आती है, जिसको मेडिकल टर्म में हम हेलिटोसिस कहते हैं, और ये अभी आजकल का बेसिक मेन कंसर्न है। हेलिटोसिस बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है, आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो, आपके बाकी किसी ऑर्गन सिस्टम में इशू हो, बट मेनली यहाँ पे हम बात करें प्यूबर्टी जिंजिवाइटिस की, बैड ब्रेथ का, तो दैट इज बिकॉज कि आपके जब ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, ऊपर से आपकी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होती है, तो ऐसे में फिर आपके जो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है बैड ब्रेथ। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे मुंह, हमारे मसूड़े सूजे में हैं, पफीनेस है, ड्राइनेस है, और शाइन करते हैं, और ज्यादातर आगे के दांतों में ये तकलीफ जो है ज्यादा महसूस की जाती है। ओके, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, हाउ कैन आई प्रिवेंट जिंजिवाइटिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इनिशियली जब हम स्टार्ट में व्हेन वी आर किड्स, तो हमारी मदर स्पेशली वो हमें लुक आफ्टर करी होती हैं, हमारी ओरल हाइजीन को वो देख रही होती हैं, दे शी आस्क अस कि ब्रश करो, और कभी कभी तो अम्मा, हमारी मदर्स जो है वो खुद पकड़ के हमें ब्रश करवा भी देती हैं। बट जब हम बड़े हो रहे होते हैं, ज़ाहिर है वी आर गेटिंग इंडिपेंडेंट, हम थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट हो रहे होते हैं, तो ऐसे में जो सबसे चीज़ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है दैट आई हैव सीन, वो हमारी ओरल हाइजीन है। हम सबसे पहले ओरल हाइजीन, हम बाकी चीज़ों पे बहुत फिक्र करते हैं कि यार वी नीड टू वर्क ऑन आवर अदर ऑर्गन सिस्टम्स, लेकिन ओरल हाइजीन और डेंटल अवेयरनेस बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। प्यूबर्टी में आप जिंजिवाइटिस को या ओरल हेल्थ की जो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, दैट यू शुड ब्रश ट्वाइस अ डे विथ फ्लोराइड टूथपेस्ट। वी शुड मेक, आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, सबसे पहली चीज तो यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, ठीक है, इट इज अ मस्ट थिंग, और आप उनसे कंसल्ट करें। द डेंटिस्ट यूजुअली एडवाइज द फ्लोराइड टूथपेस्ट। फ्लोराइड टूथपेस्ट इस टाइम पे एक तो आपके इनेमल को, आपके दांत को प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट्स कैविटीज एंड कैल्कुलस डिपोजिशन। और ब्रश ट्वाइस अ डे कैसे करें, आप सुबह नाश्ते के बाद आफ्टर 5 to 7 मिनट्स ऑफ ब्रेकफास्ट, आप जब आपका, कभी हम गर्म चाय पीते हैं या ठंडा दूध पीते हैं, तो हमारा ओरल हेल्थ जो है, हमारा जो ओरल टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो व्हेन यू थिंक इट्स नॉर्मल आफ्टर
5 to 7 minutes, go and brush your teeth for at least 2 to 3 minutes. आराम आराम से आप सर्कुलर मोशन में you have, alhamdulillah, now we have YouTube, we have Instagram, we have TikTok, हमारे पास बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोस हैं, so we can easily check कि हम किस तरह से अपनी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं. आप उस पर देखें. एंड व्हेन बिफोर यू गो टू बेड आफ्टर डिनर आपने स्वीट्स ले ली, फ्रूट्स खा लिए, अगेन आफ्टर 10-15 minutes ऑफ डिनर बिफोर यू गो टू स्लीप आप अपने ब्रश को, अपने दांत को अच्छे से ब्रश करके सोएं. एंड मेक श्योर कि उसके बाद आप कोई ऐसी चीज नहीं खाएं जो आपके दांतों को खराब करे. दैट कैन इन्फ्लुएंस, दैट कैन लीड टू कैविटीज और गम्स का इशू. आपको कोई इस तरह की चीज जो है ना वो ना देखने को मिले. आप इतना ख्याल रखें कि रात को सोने से पहले आफ्टर फूड आप जो है आफ्टर डिनर अपने दांत साफ कर लें. ओके. और इसके अलावा आप मेक श्योर करें कि आप आफ्टर एवरी 6 मंथ्स डेंटल चेकअप्स करें. एंड ऑल्सो आप स्टिकी फूड, स्नैक्स, चॉकलेट्स, बेवरेजेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी अवॉइड करें. Another question we have, can orthodontic treatment be done during puberty? Yes, puberty जो है वो एक आइडियल टाइम होता है, ठीक है, 12 to 18 years ऑफ एज, जिसमें आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी टीथ डेवलपमेंट भी हो रही होती है, जॉ डेवलपमेंट भी हो रही होती है, ग्रोथ स्पर्ट्स भी हो रहे होते हैं. बट वी हैव टू मेक श्योर कि उस टाइम पे हमारी ओरल हाइजीन जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो. वी हैव सीन कि हमारे ऐसा होता है कि जब हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तो जाहिर है आपके मुंह में दांत हिल रहे होते हैं, बोन पे प्रेशर पड़ रहा होता है, जॉज पे, तो ऐसे में हमारे पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमने तो 2-3 दिन दांत नहीं साफ किया, हमें दर्द हो रहा था. इट्स इज ऑब्वियस थिंग, होता है, में बहुत शदीद तकलीफ होती है. इवन आई हैड एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट व्हेन आई वाज 14 years ऑफ एज. बट लाइक आई सेड अर्लियर, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता अपने दांत साफ करें. सिलाइन वाटर रिंजेस करें. सिलाइन वाटर रिंजेस नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियां करें, सो दैट आपके जो आपके मसूड़े, एक उसका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है, सूदिंग इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है. ऑल्सो कैलकुलस डेपोजिशन को भी वो प्रिवेंट करता है. तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैं आई फॉरगॉट टू शेयर अर्लियर, कि फैमिली डिस्पोजिशन पे भी बहुत डिपेंड करता है. जब आई वॉज 14-15 years ओल्ड तो मेरे जिंजुअल चेंजेस इतने ज्यादा नहीं थे, मेरे ओरल हेल्थ में इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं थी. बट मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज ऑल्सो गोइंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, और उसके स्पेशली ड्यूरिंग हर टाइम ऑफ द मंथ, जब आपके पीरियड्स हो रहे होते हैं, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस वक्त बहुत ज्यादा. लेकिन वैसे भी उसकी जो ओरल हेल्थ चेंजेस थे वो बहुत ज्यादा थे. तो अगर आपकी बहुत ज्यादा हो, फैमिली डिस्पोजिशन हो, प्री डिस्पोजिशन हो, तो आपको और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, आपको और ज्यादा अपनी हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है. ओनली देन वी कैन अवॉइड सच सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे माउथ में अकर हो रहे होते हैं. Last but not the least, the last question is, how do changes in diet during puberty affect oral health? Puberty, again I said कि ऐसी एज है जिसमें हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी में वाइटामिन, सप्लीमेंट्स, मिनरल्स, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही होती है, बिकॉज वी आर चेंजिंग, वी आर जस्ट शिफ्टिंग टूवर्ड्स अडल्ट फेज ऑफ आवर लाइफ. तो ऐसे में हमें भूख भी, हमारी एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाती है. और हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि हम हमेशा स्नैक्स की तरफ जाते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हेल्दी फूड, द फूड दैट वी कैन मेक. हम कहते हैं हम स्नैक्स ले लें, फास्ट फूड कर लें, जंक फूड ले लें, और उसका ये इशू आता है हमारे उसमें, इट हैज़ अ बैड इफेक्ट इन आर ओरल हेल्थ. कैसे? कि जो हमारे स्नैकिंग है, फास्ट फूड, चिप्स, बर्गर्स, चॉकलेट्स, बेवरेजेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, दे एड टू कैविटीज इन आर, वो, क्योंकि जाहिर है हम हर वक्त ही मंचिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होती है. वी आर नॉट वेरी केयरफुल कि यार चलो हर खाने के बाद जाके ब्रश कर लें या एटलीस्ट कुली कर लें, राइट? तो हम लोगों का ये एक डिसएडवांटेज है इसका. ऑल्सो ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, दे हैव अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन आर इनेमल एंड टीथ. हमारे जो उसको वो इट इट एड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस, और एसिड इरोजन की वजह से हमारे दांत वीकन हो जाते हैं, हमारे मुंह में कैविटी वगैरह होना शुरू हो जाती है. जब हम बहुत ज्यादा स्टिकी फूड खाते हैं, अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं. और आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमारी हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हो तो हमारे मसूड़ों में, आपने, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड पॉकेटिंग, गम्स में पॉकेट होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे खाना फंसता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, फिर उसकी वजह से बाकी दांत, उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, एंड इट लीड्स टू टूथ डिके एंड गम प्रॉब्लम्स. सो इट इज एडवाइज कि आप बैलेंस डाइट खाएं, लो इन कार्ब्स, लो इन फैट, रिच इन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छे से पानी पिए, रिंस करें रेगुलरली आफ्टर यू ईट समथिंग, so that to minimize
teeth, and gum problems. So that was it from my side. I have a little small take home message for you. A healthy smile begins with awareness. Care for yourself, care for your family, and let oral health grow with every life stage. आप अपना जितना ख्याल रखेंगे, जितनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखेंगे, उतना जबरदस्त रहेगा आपके बाकी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के लिए, आपकी एस्थेटिक्स के लिए, आपकी स्माइल के लिए. ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा. So that was it from my side. I hope it was a valuable session. मैं अब now I invite Dr. Tuba to continue with the rest of the session. Thank you very much, dear audience. Thank you, Dr. Saman, for a very insightful session and for addressing all the questions very nicely. Assalamu alaikum, everyone, and a very happy Mother's Day to all of you. I am Dr. Tuba Osman, the Associate Director at Pride. In my part, we'll address the questions that most women go through during pregnancy and usually the complaints that we as dentists we receive in our hospitals and clinics. Pregnancy itself is a beautiful journey, but it also brings many changes, including those that affect your oral health. In this special session, I'll be addressing the most common questions that are being asked. Let's take the first question. The first question that we have is, what are the effects of pregnancy on oral health? जब प्रेगनेंसी होती है तो ओरल हेल्थ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, किन किन चेंजेस की बुनियाद पे पेशेंट्स आपके पास आते हैं कि जी मसूड़ों में मेरे स्वेलिंग हो रही है और ये पहले नहीं होता था, अब मेरे पास ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़े रेड हो रहे हैं, कुछ भी खाती हूँ तो सेंसिटिविटी लगती है. So pregnancy can lead to various oral health changes, and these are one of those. Gum inflammation, that is known as gingivitis. Inflammation, bleeding gums, मसूड़ों का red हो जाना, swollen हो जाना, it is common in pregnancy. उसके अलावा आपके दांतों में अक्सर पेशेंट कहते हैं कि जी दांतों में दर्द शुरू हो गया, ये पहले नहीं था, पहले पहले इतना ज्यादा नहीं था, कभी कभी होता था, लेकिन अब प्रेगनेंसी में ये है कि मेरा मोर ऑफ्टन आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है. सो इट कुड बी एन अंडरलाइंग सिचुएशन कि आपके दांतों में पहले से केरीज था, इट वाज लेफ्ट अनट्रीटेड, और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब प्रेगनेंसी में हम यहाँ पर मेरे पास काफी सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, दे कैन रिलेट टू दिस थिंग कि प्रेगनेंसी में हमने पढ़ा है कि सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो ट्रिगर हो रहे होते हैं, और क्योंकि सारे रिस्पॉन्सेज ट्रिगर हो रहे होते हैं तो ओरल हेल्थ कैसे पीछे रह सकती है, राइट. सो टूथ डीके भी उसके साथ, टूथ टीके, केरीज, आरसीटीज इसकी प्रॉब्लम आ जाती हैं, और फिर हमें उसमें देखना पड़ता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमें किस ट्राइमेस्टर में कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से इलेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं जो होने चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल. अच्छा, सलाइवा कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंसेस आ रहे होते हैं. मुंह में जो थूक है, नॉर्मली हमारा मुंह जो है उसमें सलाइवा कॉम्पोजिशन, हमारी अगर हमारा लुब्रिकेंट है, हमारा मुंह में कुछ भी खाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम अच्छे से च्यू कर पा रहे हैं, अच्छे से अंदर ले रहे हैं. लेकिन स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में ये कंप्लेन्स होती हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन अक्सर इस कंप्लेन से आती हैं कि मेरे मुंह में ड्राइनेस हो रही है. सो इस वजह से हो रही होती है क्योंकि सलाइवा कॉम्पोजिशन में उसकी पीएच में चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो इट इज अ कॉमन थिंग, और ये सबसाइड हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी, नॉट टू वरी अबाउट इट. लेकिन उसके लिए आपने साथ साथ अपने डाइट का ख्याल रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जीरोस्टोमिया या आपकी ड्राई माउथ हो रही है तो आपने उसी तरह अपने मुंह को जो है वो पानी पीते रहना है या उसको ड्राई नहीं रहने देना है. इसके साथ मुंह से बदबू भी आती है जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं, जो डॉक्टर समन ने भी अभी जिसको रेफर किया और उसको बहुत अच्छे से समझाया कि दैट वी डील इट थ्रू प्यूबर्टी ऑल्सो. सो बैड ब्रेथ आती है, मुंह से बदबू आती है, उसकी वजह ये भी होती है क्योंकि कॉमनली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको क्रेविंग का बहुत इशू होता है, उनको क्रेविंग की बड़ी क्रेविंग्स हो रही होती हैं, मीठा खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं. सो एक चीज साथ पे हमने ख्याल रखना है कि आपने अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है कि आपने मुंह की सफाई करनी है, कुछ खाया है फ्लॉस करना है, उसको ब्रश आउट करना है, अच्छे से उसको साफ करना है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर रह जाता है तो फिर आपको पता है कि वो ट्रिगर करता है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है. टंग स्क्रैपर यूज करें, आजकल तो वाइडली अवेलेबल हैं बहुत सारी चीजें, और माशाल्लाह लोग भी इतने ज्यादा अवेयर हैं कि उनको काफी सारी चीजें पता हैं. सो आप टंग स्क्रैपर यूज करें, आप माउथ वॉशेस यूज करें,
फ्लॉस करें फ्लोराइड, अच्छे फ्लोराइड टूथपेस्ट से. सेकंड क्वेश्चन that we have is how do hormonal changes during pregnancy affect the gum, which is more or less the first related to the first question. So वही बात है कि भाई सेंसिटिविटी होती है, वो इस वजह से हो रही होती है क्योंकि मसूड़ों में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, मसूड़े ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. सेंसिटिविटी की वजह से एक टर्म है हमारे पास जिसे जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस. सो प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेम गम्स. इन्फ्लेम गम्स कौन से होते हैं? जो कि फूले हुए मसूड़े जिसको कह सकते हैं, जो हम विजिबली जब आप पेशेंट आता है तो हम उसको उसके उसके ओरल हेल्थ को जब ओरली उसको देखते हैं तो हमें रेड कलर के वो दिख रहे होते हैं. सो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स गुड ओरल हाइजीन. अच्छी मुंह की सफाई रखनी चाहिए जिसमें ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश, अच्छा रेगुलर डेंटल चेकअप्स होने चाहिए ताकि दांतों की सेहत जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज ना हो. क्योंकि दांतों की सेहत अगर कॉम्प्रोमाइज होगी तो वो आपके बच्चे की सेहत पे भी उसका इफेक्ट आएगा, विच वी विल डिस्कस आगे. प्रोफेशनल क्लीनिंग्स में यही आता है कि आपकी स्केलिंग हो गई. और लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डेंटिस्ट को, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएं कि दैट जब भी आप प्रेग्नेंट हैं. डॉक्टर गजाला ने भी ये बात बताई और मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बात लगी क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बताना भूल जाते हैं, नहीं बताते हैं. हम एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जब डायग्नोसिस कर रहे होते हैं तो हम डेफिनेटली हम पूछते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, बट एट टाइम्स हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है. तो आप भी ये अवेयरनेस दें सबको कि जब भी वो जाएं अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास तो जरूर मेंशन करें कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आपका कौन सा मंथ चल रहा है, ताकि उनसे भी कोई फॉल्ट ना हो. क्योंकि सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं. और बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो हम किसी ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते हैं. बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम नहीं दे सकते हैं. यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ दैट. ठीक है, बिकॉज इट इज सच अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज can pregnancy cause tooth decay or oral health problems? Yes, pregnancy can increase the risk of tooth decay and other oral health issues. Regular dental care जैसे मैंने आपको बताया बहुत जरूरी है. गुड ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है इन सारे इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए. फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड. अगर ये हो जाता है तो व्हाट अबाउट द डेंटल ट्रीटमेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जी डेंटल ट्रीटमेंट्स क्या होने चाहिए और अगर ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो क्या डेंटल ट्रीटमेंट्स हमें लेने चाहिए? सो डेफिनेटली यस, dental treatments can be done during pregnancy, but it is best to consult your dentist or healthcare provider. They can advise best considering your situation, trimester, और इलेक्टिव डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर. सेफ प्रोसीजर्स, प्रिवेंटिव केयर, रेस्टोरेटिव केयर, और हम इमरजेंसी केयर भी देते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशंस. ओके, last question that we have is what is pyogenic granulomas and why do they occur during pregnancy? So pyogenic granulomas are benign growths that can occur in the mouth, typically on the gums, lips, or tongues. They're also known as pregnancy tumors or granulomas. They're usually benign. अक्सर ये हो जाते हैं किसी ट्रिगर रिस्पॉन्स की वजह से हो जाता है, किसी टूथ डीके की वजह से हो जाता है, या किसी ऐसे रिस्पॉन्स की किसी फूड ट्रिगर की वजह से भी हो जाता है. सो यूजुअली ये पोस्ट प्रेगनेंसी जो है वो रिजाइड हो जाता है, लेकिन इसकी अंडरलाइंग कॉजेज भी होती हैं, जैसे ट्रॉमा है, कोई इन्फेक्शन है, कोई पुअर ओरल हाइजीन है, उसकी वजह से भी आप पायोजेनिक ग्रैनुलोमास फेस करते हैं. सो प्रेगनेंसी में तो उसकी ट्रीटमेंट यही है कि अगर आप डिपेंडिंग ऑन योर ट्राइमेस्टर आप प्रोफेशनल क्लीनिंग है, स्केलिंग है, और फिर देन अगर ये सबसाइड नहीं करता बाद में भी तो फिर इसके पास भी अब अदर ऑप्शंस, सर्जिकल रिमूवल्स हैं, लेजर थेरेपीज हैं, गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं. वैसे तो ये आफ्टर प्रेगनेंसी यूजुअली खुद ही सबसाइड कर जाता है, बट इफ द ग्रोथ परसिस्ट और इट इज कॉजिंग डिस्कम्फर्ट एंड सो व्हाटसोएवर, सो अ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है.
अच्छा, there are certain medications also that you need to avoid during pregnancy, जिसमें tetracycline है. um, हम सबको पता है कि that this antibiotic can affect the fetal development and cause food discoloration in the fetus. या एस्पिरिन की हाई डोज है, या सर्टेन पेन किलर्स हैं. थर्ड ट्राइमेस्टर में इमरजेंसी डेंटल वर्क कैन बी डन, बट नॉन इमरजेंसी प्रोसीजर्स आर ऑफन पोस्टपोन्ड टिल डिलीवरी. ठीक है. सो दीज आर द की टेक्स जो हमें करने चाहिए. ओरल हाइजीन हैबिट्स जो प्रेगनेंसी के दौरान हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अपने रखने चाहिए. ब्रश करें ट्वाइस अ डे, फ्लॉस करें, ब्रश करें फ्लोराइड टूथपेस्ट से, फ्लॉस करें. शुगरी और एसिडिक फूड ना खाएं. और यूजुअली क्या होता है कि मॉर्निंग सिकनेस होती है, वॉमिटिंग होती है. सो उस वॉमिटिंग के बाद आप प्रॉपरली अपना मुंह जो है वो रिंस करें फ्लोराइड माउथ वॉश से, वॉश करें, ताकि आपके वो इनेमल को प्रोटेक्टेड रखे. उसके अलावा ये है कि हाइड्रेटेड रहें, पानी पिए ज्यादा से ज्यादा, और अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें. लेट योर स्माइल रिफ्लेक्ट योर resilience, and let your oral health mirror your self-care. To every mother listening today, you carry life, love, limitless strength within you. Stay informed, stay proactive, and above all, keep smiling through the changes. I'd like to hand over the mic to Dr. Hira to continue the session. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. Thank you, Dr. Diba, for such a wonderful session. My name is Dr. Hirai Sani, and I'm the Regional Director of Pride. Before starting the presentation, I'd like to share a few things with you guys. Usually, mothers around us, they're not aware about many things related to oral health. उनको idea नहीं होता, so it's better to learn something and to share things. And please, 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 never shy away from sharing history with your doctors or dentist, because females are extremely shy when it comes to sharing things about pregnancy. It is very crucial to inform your dentist, physician about your pregnancy, because there are so many things that are needed to be avoided and need to change during pregnancy. So I'll begin with the questions. So the first question is, what dental treatments are safe during pregnancy? So there are many myths that you can't get your dental treatments done during pregnancy, which is very wrong. Dental treatments are completely safe during pregnancy. So अब कौन सी treatments हम करा सकते हैं, तो हमें कौन सी ट्रीटमेंट्स हम करा सकते हैं, अब ये पहला क्वेश्चन होता है. तो हम प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक एंड रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट्स हम करवा सकते हैं. जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम करवा सकते हैं. बट ट्रीटमेंट जैसे कि एस्थेटिक हो गई, जैसे हम टीथ वाइटनिंग हो गई, ये चीज़ें तो हमें अवॉइड करनी होती है जब तक हमारी प्रेगनेंसी कंप्लीट ना हो जाए. उसके बाद वी कैन गो फॉर प्रोसीजर्स लाइक टीथ वाइटनिंग, implants, etc. Also, there are medications given such as local anesthesia, जिसको हम injection भी बोलते हैं सुन करने का, that is also completely safe during pregnancy. But again, it is very, very crucial for you to tell your doctor about your pregnancy, because first trimester or second trimester में usually people don't like to share these things. और एक myth है कि मतलब like oral health का इससे कोई association नहीं है, तो dentist को बताया ना जाए. But it is very important to tell your dentist about these things, because certain medications, like Dr. Tuba also mentioned, we need to avoid certain medications because they're not, they can harm the fetus. तो अगर कोई चीज़ fetus को harm करती है तो हम वो नहीं दे सकते. तो इससे इन चीज़ों का बताना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि ये चीज़ें अवॉइड हो सके और सेफ डेंटल प्रैक्टिस हो सके. The second question is, can I get dental X-ray during pregnancy? Yes, in general, X-rays are avoided during pregnancy. But अगर हम dental X-ray की बात करें, तो dental X-ray की जो radiations होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं. And it is also verified by American College of Obs and Gynae कि हम dental X-rays कर सकते हैं. But even for that, it's very best कि हम lead apron का इस्तेमाल करें. As a dentist as well, we should do it, because हम constantly X-ray ले रहे होते हैं. And for the pregnant lady, हम उनको भी dental X-ray दें. और कोशिश करें कि अगर if we are doing procedure जिसमें for example हम root canal कर रहे हैं और उसके अंदर X-ray की बहुत ज़्यादा नीड है, तो as a practitioner हम करें, हम minimal X-rays करें, कि जितने कम से कम X-rays होने चाहिए हम बोलें. बट ऐसा नहीं है कि हम X-ray बिल्कुल ही नहीं ले सकते.
So because x-rays are completely safe during pregnancy, dental x-rays, I'm specifying dental x-rays are completely safe, क्योंकि उनकी जो रेज होती हैं वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो फीचर्स को हार्म करें. The next question is, how often should I visit the dentist during hormonal fluctuation? So as a female, the hormonal fluctuations जब आपकी like pre-teen से की चीजें तो start हो जाती हैं, but we don't think about dental health. कि हम समझते हैं कि डेंटल हेल्थ का सिर्फ दांत हैं तो उनका कोई ओवरऑल सिस्टमेटिक लिंक नहीं है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग. डेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा एसोसिएशन है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद आवर जनरल हेल्थ. फॉर एग्जांपल पेरिडोंटाइटिस, जिसको हम गम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, अ सिवियर फॉर्म ऑफ गम इन्फ्लेमेशन, उसका काफी ज्यादा लिंक है आपकी ना सिर्फ ओरल हेल्थ से, आपका उनका हार्ट डिजीजेस से भी लिंक है, उनका डायबिटीज से भी बहुत ज्यादा लिंक है. एंड इट इज वेरी वेल रिसर्च थिंग कि उसका एक एसोसिएशन है. तो अब हम अगर हार्मोनल चेंजेस की बात करें तो जैसे कि प्यूबर्टी हो गई, मेंस्ट्रुएशन हो गया, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज, उसमें आपकी फ्लक्चुएशन होती रहती है. ये फ्लक्चुएशन आपके गम्स पे भी इफेक्ट डालती है. आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, आपके गम्स स्वेल हो जाते हैं, या फिर आपके गम्स ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है. तो इन चीजों को आपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाना है. स्पेशली ब्लीडिंग आपके गम्स से हो रही है तो इट्स अ साइन दैट यू नीड टू विजिट योर डेंटिस्ट. आइडियली हमें हर 6 मंथ्स बाद डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, बट सिंस इट्स समथिंग वी टेक, स्पेशली मदर्स, वो बहुत ज्यादा फॉरग्रांट करती हैं अपनी हेल्थ को, एंड दे अवॉइड, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपने बच्चों को देखें और अपनी फैमिली को देखें. तो प्लीज 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 मेक श्योर कि आपकी सराउंडिंग में जितनी मदर्स हैं, न्यू मॉम्स हैं, मेक श्योर कि आप उनकी हेल्थ की फिक्र करें. यू मेक श्योर कि उनको पता हो कि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटल चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स. जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, यूजुअली अगर आपका कोई गम इशू होता है जिसकी वजह से, हार्मोनल इशू की वजह से स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो वी हैव वेरी सिंपल मेजर्स जो नॉन सर्जिकल, नॉन इन्वेजिव होते हैं, जिनसे हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं. और आपकी फर्दर जैसे एडवांस चीज़ें हैं, जैसे बोन लॉस हो गया, टूथ लॉस हो गया, इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the benefits of regular dental checkups during pregnancy or puberty? तो रेगुलर डेंटल चेकअप्स आपकी, वेदर इट इज प्यूबर्टी से रिलेटेड या फिर आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ये हेल्प कर सकते हैं हमें अर्ली डिटेक्शन में. जैसे कि अगर आपके पास कोई केरीज है, आपके मुंह में कीड़ा लग गया, बेसिकली अगर आसान लैंग्वेज में बोले तो, या तो आपकी गम्स सूज गए, मसूड़े फूल गए जो इन्फ्लेमेशन करा रहे हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है, ये सारी चीजें हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ये सारी चीजें हम प्रेगनेंसी के दौरान भी, स्केलिंग जो बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं कराना चाहिए, दांत हमारा सेंसिटिव हो गया है, दांत को रगड़ रहे हैं, नो, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, इट्स अ मिथ. स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स मोस्टली द मोस्ट प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, नॉन इन्वेजिव, जो हम करते हैं एज अ डेंटिस्ट. इसमें हम बेसिकली मसूड़ों को, हम आसान लफ्जों में बोले तो इट्स अ गम थेरेपी. मतलब गम्स को हम मसाज कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं. और जब हम डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं, जो आप एक नॉर्मल रेगुलर ब्रशिंग से और फ्लॉसिंग से नहीं कर पाते, तो हम, जैसे कि पहले मेंशन किया गया कि टार्टर का रिमूव, प्लाक, उसको कैलकुलस का रिमूव, हम वो कर रहे होते हैं. तो इससे क्या होता है, आपके गम्स, दे फील बेटर, दे फील हेल्दी. तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि पेरिडोंटाइटिस, जिंजवाइटिस, अगेन ये सब एक गम्स की इंफ्लेमेशन, गम्स की डिजीजेज हैं. और कैलकुलस का बिल्डअप होना जिसकी वजह से हाइलेटोसिस, जो कि बैड ब्रेथ होता है, वो सब चीजें हम मिनिमाइज कर सकते हैं. तो रूटीन डेंटल चेकअप्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और आइडियली एवरी 6 मंथ्स बाद वी हैव टू विजिट आवर डेंटिस्ट, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हमारे दांतों में कोई कीड़ा तो नहीं लग गया. और ये सिर्फ एज अ मदर या एज अ हार्मोनल फ्लक्चुएशन या कोई टीन एज के लिए नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक एज अ जनरल पब्लिक हेल्थ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी विजिट आवर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स. अगेन आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि अगर हम रूटीन डेंटल चेकअप करवाएं तो हम काफी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज डेंटल प्रोसीजर्स कैन बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. तो अगर आप रूटीन चेकअप्स रखेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा, इवन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगी चीजें. So the last question that I have is, can dental problems during pregnancy or puberty affect overall health? Yes, dental problems during pregnancy or puberty can have a broader implication on your overall health. जैसे कि I did mention, आपकी
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपकी पेरिडोंटल यानी गम डिजीजेस जो होते हैं उनका जो है एडवर्स आउटकम है, जैसे प्रीमेच्योर बर्थ होना, लो बर्थ वेट होना, और अगर हम प्यूबर्टी की बात करें तो पुअर ओरल हेल्थ जो है वो लीड कर सकती है क्रॉनिक गम डिजीजेस की तरफ. वेरी there is a high association with your cardiac and cardiac diseases of your gum. So maintaining good oral hygiene and addressing dental issues promoting during these stages is extremely crucial and extremely important. Lastly, I like to highlight this thing that क्योंकि clinic में भी usually ये चीज बहुत ज्यादा होती है when we are telling patients that scaling is so important, not just for like a pregnant woman or someone going through hormonal fluctuations, but for general public. They try to avoid it and think कि हाँ हम बाद में करा लेंगे, या फिर dentist is trying to make their money. No, it's not money making thing. इससे दांत आपके खराब नहीं होंगे. It is something very very important. It is basically you getting your gums cleaned deeply. उससे आपके gums जो मसूड़े जगह छोड़ देते हैं वो अपनी जगह पे वापस आते हैं. तो it is very important. So please don't take scaling for granted, और don't just think कि ये आपका एक पैसा बनाने की स्कीम है. इट्स अ वेरी मतलब एडीए आपका जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है वो भी हाईलाइट करती है इसकी इंपॉर्टेंस. तो प्लीज इफ यू दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू गाइस टू टेक अवे फ्रॉम दिस, कि अगर कोई आपको स्केलिंग का बोलता है तो डोंट जस्ट बी लाइक कि हम बाद में कराएंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट डन. सो थैंक यू वेरी मच. एंड Thank you all for joining us today for this special Mother's Day webinar hosted by Pride. We hope this session provided valuable insights into the often overlooked connection between oral health and the hormonal changes during pregnancy and puberty. Your participation means a lot to us, and we truly appreciate the engagement and thoughtful questions from everyone. A heartfelt thank you to our incredible speakers for sharing their expertise and making this session both informative and relatable. At Pride, we are committed to continuing these conversations and creating platforms that promote learning and awareness for all. If you are not already part of our community, make sure to follow us on our social media pages and stay connected for upcoming webinars, research opportunities, and more. Until next time, stay healthy, stay informed, and keep smiling.